Hello friend, welcome back to KG online platform. Myself Gunjan here, and today we are going to discuss a very important question series that is from unit 2, that is cell biology. And in this unit we will say cytoskeleton MCQ test series, which is important for your coming exam 2026, whatever CSIR NET GRF, ICMR GRF, GATE, Excel, SET, etc. सो आपका केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और टुडे यूनिट 2 सेल बायोलॉजी से टॉपिक दैट इज साइटोस्केलेटन से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ, जो आपके कमिंग एग्जाम CSIR नेट लाइफ साइंसेज 2026, ICMR GRF, गेट एक्सेल, DBT, IIT जैम एंड CUT PG, इन सब के लिए ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज a researcher treat culture cell which a drug that specifically cap the plus end of the actin filament. Which of the following cellular process would be most directly and immediately inhibited? Option A है the disassemble of the nuclear envelope during mitosis. Then the extension of lamellipodia and filopodia in cell migration. Option C है the separation of the chromosome during anaphase. Option D है the transport of vesicle from the Golgi to the plasma membrane. So correct answer जो है option B है, that is the extension of lamellipodia and filopodia in cell migration. Extension of lamellipodia and filopodia in cell migration. So this is very important questions for your coming exam. Now moving to next question. आपका अगला क्वेश्चन है in an in vitro motility assay, individual actin filaments are observed moving over a glass cover slip coated with immobilized myosin heads. What is the primary source of energy for this movement? Option A है hydrolysis of GTP bound to the actin filament. Option B है phosphorylation of myosin light chain. Option C है hydrolysis of ATP by the myosin heads. And option D है the electrochemical gradient across the membrane. So correct answer जो है option C है hydrolysis of ATP by the myosin heads. So the power strokes in myosin based on motility is fluided by the ATP hydrolysis, and the myosin heads fixed on the cover slip undergo a conformational changes upon ATP binding and hydrolysis, walking the actin filament along. So this is the explanation of these questions. I hope आपका concept clear होगा. Now moving to next question. आपका अगला क्वेश्चन है colchicine, a drug that binds to tubulin and prevent its polymerization, is added to a cell. Which of the following event would be blocked first? Colchicine, a drug that binds to tubulin and prevent its polymerization. एक ड्रग है जिसको ट्यूबुलिन से बाइंड किया जाता है और वो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है जब एक सेल में ऐड किया जाता है. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल बी ब्लॉक फर्स्ट? अब ये कोलेचिसिन कौन से प्रोसेस को सबसे पहले ब्लॉक करेगा? ऑप्शन ए है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स. ऑप्शन बी है द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द गोल्गी apparatus ड्यूरिंग माइटोसिस. ऑप्शन सी है द कंट्रैक्शन ऑफ द कंट्रैक्टाइल रिंग. एंड ऑप्शन डी है द मूवमेंट ऑफ द सिलिया. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गोल्गी apparatus ड्यूरिंग माइटोसिस. अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल्गी apparatus ड्यूरिंग माइटोसिस क्यों होता है? तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गोल्गी apparatus ड्यूरिंग माइटोसिस, कोलेचिसिन डिपोलिमराइज माइक्रोट्यूबुल्स. कोल्चिन जो होता है माइक्रोट्यूबुल को डिपोलिमराइज करता है. द गोल्गी apparatus फ्रैगमेंट ड्यूरिंग द प्रोफेज इन microtubule dependent manner, and this would be early effect. Cytokinesis and the contractile ring primarily involved in the actin myosin filament. जो साइटोकाइनिन है वो contractile ring जो प्राइमरली जो है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में इन्वॉल्व होता है. और सिलियरी मूवमेंट जो ऑप्शन डी है रिक्वायर फॉर द स्टेबल माइक्रोट्यूबुल डबल doplet and would be also be stopped. But the Golgi
रिकॉग्नाइजेशन इज ए वेरी अर्ली माइटोटिक इवेंट। तो करेक्ट आंसर जो है आपका बी है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गोल्गी apparatus ड्यूरिंग माइटोसिस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, कैनेसिन फर्स्ट और साइटोप्लाज्मिक डाइनिन आर बोथ द मोटर प्रोटीन। कह रहा है कि कैनेसिन फर्स्ट और साइटोप्लाज्मिक डाइनिन जो है दोनों मोटर प्रोटीन है दैट मूव अलोंग द माइक्रोट्यूबुल्स। ए के फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज द के फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन देम? ऑप्शन 1 है काइनेसिन 1 move towards the myosin while the dynein moves toward the plusin। अब ये कह रहा है काइनेसिन फर्स्ट जो होता है माइनसिन में मूव करता है while dynein moves the plusin में, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है काइनेसिन फर्स्ट मूव टुवर्ड्स द प्लसिन while the dynein moves toward the myosin। ऑप्शन सी है काइनेसिन फर्स्ट रिक्वायर एटीपी while the dynein use जीटीपी। ऑप्शन डी है काइनेसिन फर्स्ट ट्रांसपोर्ट वेहिकल while the dynein only move क्रोमोसोम। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है। This is the fundamental distribution. Most kinesin are the placid directed motor from the cell center to the periphery। जो काइनेसिन का मूवमेंट होता है वो सेल सेंटर से होकर पेरिफेरी तक होता है, जबकि साइटोप्लाज्मिक डाइनिन जो होता है माइनसिन होता है डायरेक्टेड टू मोटर फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेल सेंटर। और जो डाइनिन का मूवमेंट होता है वो कहाँ से होता है? पेरिफेरी से होकर सेल सेंटर में। और जो दोनों में एक्टिन और डाइनिन दोनों क्या करते हैं? एटीपी का यूज करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट डिफर फ्रॉम बोथ द एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहा है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो एक्टिन और माइक्रोट्यूबुल्स के कंपैरिजन में किस वे से डिफर करता है? दे आर पोलराइज्ड स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी है देयर असेंबली इज न्यूक्लिएटेड एट द सेंट्रोसोम। ऑप्शन सी है दे आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन दैट बाइंड न्यूक्लियोटाइड। और ऑप्शन डी है दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सेल मोटिलिटी और ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, दे आर द नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेल मोटिलिटी और ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट। ये जो होते हैं वो ना ही ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं और ना ही मोटिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं। कौन? इंटरमीडिएट फिलामेंट। द प्राइमरी रोल ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट इज टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। ये क्या करते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात किया जाए तो वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जबकि दे आर द नॉन पोलर, देयर असेंबली इज नॉट न्यूक्लिएटेड टू द सेंट्रोसोम एंड दे डू नॉट यूटिलाइज न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग for assembly. Motility and transport are the function of the actin and microtubules। मोटिलिटी और ट्रांसपोर्ट का जो काम है किसका है? एक्टिन और माइक्रोट्यूबुल का है, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो मेन काम है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, फाइलोइडिन एक टॉक्सिन है फ्रॉम द डेथ कैप मशरूम। फाइलोइडिन एक मशरूम के कैप से ऑब्टेन किया जाता है, स्टेबलाइज एक्टिन फिलामेंट एंड प्रिवेंट देयर disassembly। If phyloidine is microinjected into cell, what would be the most likely consequence of the cell actin dynamic? ऑप्शन ए है a rapid increase in the G actin concentration। ऑप्शन बी है inhibition of the treadmilling। ऑप्शन सी है enhanced depolymerization at the myosin। and ऑप्शन डी है increase the branching of the actin filament। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, इनहिबिशन ऑफ द ट्रेडमिलिंग। Inhibition of the treadmilling. Treadmilling requires balance of polymerization at the plus end and depolymerization at the minus end। Treadmilling require a balance of polymerization। Treadmilling में एक polymerization का balance की जरूरत होती है जो plus end और minus end पे होता है। By stabilizing F actin and preventing disassembly, phyloidine halt the turnover and treadmilling of the actin filament। Phyloidine जो होता है वो हॉल्ट करता है टर्नओवर एंड ट्रेड मिलिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के टर्नओवर करता है फाइलोडिन, हॉल्ट द टर्नओवर। फाइलोडिन का काम क्या है? टर्नओवर को हॉल्ट कर देना और ट्रेड मिलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट का जो ट्रेड मिलिंग है उसको रोकना। तो इनहेंस द डिपॉलिमराइजेशन इनहिबिटिंग ऑफ द ट्रेड मिलिंग। ट्रेड मिलिंग को इनहिबिट करता है और टर्नओवर को भी इनहिबिट करता है, हॉल्ट कर देता है किसका? एक्टिन फिलामेंट को। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, the drugs cytohelicin D caps the plus end of the actin filament in a typical animal cell undergo division। Treatment with the cytohelicin D would specifically inhibit। ऑप्शन ए है the formation of the actin mitotic spindle। ऑप्शन बी है the separation of the sister chromatids। ऑप्शन सी है cytokinins and ऑप्शन डी है the condensation of the chromosome। A drugs cytohelicin D caps the plus end of the actin filament in a typical animal cell undergoing division।
ट्रीटमेंट विद द साइटोचलासिन डी वुड स्पेसिफिकली इनहिबिट। ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पाइंडल, ऑप्शन बी है सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड ऑप्शन डी है साइटोकाइनेसिस। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इज ड्रिवन बाय द कंट्रक्शन ऑफ द एक्टिन मायोसिन कंट्रैक्टाइल रिंग। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल जो है किसकी वजह से होता है, जब एक्टिन और मायोसिन जो होता है उसके कंट्रक्शन से होता है। कैपिंग एक्टिन फिलामेंट विद द cytochalasin D would prevent the assembly and function of this ring, thus inhibiting the division of the cytoplasm। और इस तरीके से वो जो है साइटोप्लाज्म के डिवीजन को रोक लेता है। सो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अ सेल लाइन इज इंजीनियर टू एक्सप्रेस ए म्यूटेंट फॉर gamma tubulin that cannot form the gamma TURC ring complex, which cytoskeleton function is most likely to be compromised। अब कह रहा है कि कौन सा जो फंक्शन है वो साइट कंप्रोमाइज किया जाता है। ऑप्शन ए है द न्यूक्लिएशन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट इन द लेमेलोपोडिया, ऑप्शन बी है द न्यूक्लिएशन ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स एट द सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी है द फॉर्मेशन ऑफ द केराटिन नेटवर्क इन द एपिथेलियल सेल्स एंड ऑप्शन डी है द प्रोसेस ऑफ वेजाइकल फ्यूजन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन A has a cell line in engineer to express the mutant form of gamma tubulin that cannot form the gamma TURC Y tubulin ring complex, which cytoskeleton function is most likely to be compromised। तो ऑप्शन ए है द न्यूक्लिएशन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट इन लेमेलोपोडिया, ऑप्शन बी है द न्यूक्लिएशन ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स एट द सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी है द फॉर्मेशन ऑफ द केराटिन नेटवर्क इन द एपिथेलियल सेल एंड ऑप्शन डी है द प्रोसेस ऑफ वेजाइकल फ्यूजन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द न्यूक्लिएशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स एट द सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे ये न्यूक्लिएशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल सेंट्रोसोम पे क्यों होता है? The gamma TURC is the primary protein complex that nucleates the microtubule growth from the centrosome. A defect in gamma tubulin is ability to form this complex and would severely impair the cell ability to create the new microtubules। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी यदि गामा ट्यूबुलिन में डिफेक्ट हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करता है जो severely impair the cell ability to create the new microtubules, और वो न्यू माइक्रोट्यूबल्स का फॉर्मेशन करता है। Now moving to next question। आपका अगला क्वेश्चन है, इन ए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ये पार्ट सी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्लोरेसेंस इन ए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट ए ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन जिसको GFP कहते हैं is tagged to a protein that localizes specifically to the centromeric region of the chromosome during metaphase। This GEF signal is absorbed at the center of the cell, aligned along a single plane। Which motor protein is primarily responsible for the oscillatory movement and alignment of the center chromosome at the metaphase plate। अब कह रहा है कि इन्हें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट, A green fluorescence protein is tagged to a protein। एक ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन जो है वो प्रोटीन को टैग किया जाता है स्पेशली टू द सेंट्रोमेरिक रीजन, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेरिक रीजन में लोकलाइज होता है, उसको टैग किया जाता है। एंड ड्यूरिंग मेटाफेज ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब मेटाफेज में देखा जाता है कि ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन align single at the single of the which motor protein is primarily responsible for the oscillatory movement and alignment of this chromosome at the metaphase plate। ऑप्शन ए है kinesin 5+ in of directed motor, ऑप्शन बी है dynein - in directed motor, ऑप्शन सी है myosin 2 एंड ऑप्शन डी है kinesin 3 in microtubule depolarization। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, kinesin 5+ in directed motor। kinesin 5 जिसको EG5 कहते हैं, इज टेट्रामोरिक प्लस इंटर डायरेक्टेड मोटर दैट क्रॉस लिंक एंटी पैरेलल माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम द अपोजिट स्पाइंडल पोल्स। इट passes the poles apart and it crucial for the stabilizing and maintaining the metaphase plate। A balance for the modes from the kinesin and dynein along the centrosome along the chromosome। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है kinesin 5 at the plus in directed motor। Now moving to next question। आपका अगला क्वेश्चन है, बाइमेनेटिन डेस्मीन एंड केराटिन ऑल टाइप ऑफ द इंटरमीडिएट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है IFC बाइमेटिन हो गया, डेस्मीन हो गया, केराटिन हो गया। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ
intermediate filament assembly compared to the microfilament and microtubules. अब माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के कंपेयर में इंटरमीडिएट फिलामेंट का क्या यूनिक फीचर होता है? They assemble from the glomerular monomers. Option B है the assembly of the highly dynamic and regulated by the nucleotide hydrolysis. Option C है they form the non-covalent or helical polymer. Option D है they do not require a nucleation site and can self-assemble in vitro. So correct answer जो है option D है they do not require a nucleation site and can self-assemble in vitro. The characteristic feature of IFS is that their assembly does not require a dedicated nucleating organelles like the centrosome or the ARP2/3 complex for actin. Purified intermediate filament subunit can spontaneously assemble into the filament under the physiological condition, that is the in vitro. So correct answer जो है ऑप्शन डी है. So आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखे जो आपके कमिंग एग्जाम CSIR नेट लाइफ साइंसेस बहुत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ हम लोग भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं. देन आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. सो थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड डे. टेक केयर.